Hello friends, welcome to Ekdant Environment Education Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer Exam 2025 पार्ट 3 लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारा जो तीसरा लेक्चर होगा पार्ट 3 एंड in this lecture we are going to see about the unit operation unit process which will be including the screening एंड फ्लो इक्वलाइजेशंस फ्लो इक्वलाइजेशन क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होता है, यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेस के अंदर, उसके बारे में आज हम जानेंगे. नेक्स्ट, द लेवल ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो अलग अलग लेवल्स में हुआ होता है. जैसे कि जो पहला लेवल होता है वो उसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं, ठीक है ना. फर्स्ट लेवल इज योर प्रिलिमिनरी लेवल, सेकंड इज प्राइमरी, देन एडवांस प्राइमरी. समटाइम्स दिस लेवल इज ऑल्सो नॉट कमिंग. जनरली क्या होता है कि जो लेवल्स होते हैं ट्रीटमेंट के वो प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, देन कम्स योर सेकेंडरी, टर्शरी एंड एडवांस लेवल. ओके, नाउ व्हाट इज प्रिलिमिनरी. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, तो जो भी जो आपका सॉलिड वेस्ट आता है, जो फ्लोटेबल मटेरियल्स होते हैं लाइक रैग्स, स्टिक्स, फ्लोटेबल एंड ग्रीस, दिस ऑल आर कॉजिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट्स के अंदर सभी फ्लोटेबल मटेरियल्स को रिमूव करते हैं और बाद में उसका आगे का फर्दर प्रोसेस के लिए हम उसको भेजते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में वी आर डूइंग the process for the removal of suspended solids and the organic matter from the wastewater. Okay, then in the secondary treatment we are removing the biodegradable organic matters that are present in the suspension or the solutions. Okay, sometimes it also includes the suspended solids. Further, after removal of all these things, we are doing the disinfections if further no more treatment is required. Then after the secondary, the treatment is tertiary treatment, in which we are removing the residual suspended solids that are left out after the secondary treatment. Secondary treatment के बाद जो भी left out residual suspended solids रह जाएगा उसको हम tertiary treatment में करते हैं, ठीक है. And the last treatment is your advanced treatment. In the advanced treatment, we are polishing the wastewater before disposing it into the water bodies or any other disposal ऑप्शंस. जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश करते हैं इन द एडवांस और द टर्शरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस. यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस होता है. यूनिट ऑपरेशंस किसको बोलते हैं, the operations which included the physical methods, or we can say that with the help of physical forces or the principles we are removing the pollutants or the solids from the wastewater. Okay, this is your unit operations. Now what are the different physical forces that are using in this unit operations. That is the gravity, pressure, diffusions and many more other things. Okay, and the treatment units, or we can say that the units that are included in the unit operations are that are totally basically based on the this mechanism. The physical forces is screening, sedimentation, filtrations. These all three methods are totally completed based on the physical forces. Physical forces के बेस पे ही हम ये तीन मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना. स्क्रीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, we are removing the large debris by putting a barrier in between the path. Then in sedimentation we are allowing these solids to settle with the help of the gravity, and in filtration we are again separating the solids and the water by means of a porous medium. Okay, next, unit process. What we are doing in a unit process, unit operation जो था वो physical method based था. यूनिट प्रोसेस जो है वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड बेस्ड, मीन्स वी आर यूजिंग द chemicals or some microorganisms or biological activity to remove the pollutants or the contaminants from the wastewater. Now there are a few examples which units are included in a unit process, like coagulation and flocculations. We are adding a coagulants, we are adding a coagulants, and okay, to destabilize and aggregate the particles and making it settle to the bottom of the tank. Next is the activated sludge process, in which we are degrading the organic matter with the help of a microbes. Third is disinfections. We are again using a chemicals to kill the
pathogens. So this is the difference between the unit operation and unit processes. Now this is a flow chart of the treatment plant, that how treatment plant is functioning. Okay, so your raw water will be coming into the treatment plant as a influent into this treatment plant. It will pass first of all through screens and कम्युनिकेशंस। स्क्रीन्स के थ्रू पहले सबसे पहले पास होगा, स्क्रीन में जो भी फ्लोटेबल मटेरियल्स होंगे उसको हम रिमूव करेंगे, फिर आपका जो वेस्ट वाटर है वो फर्दर यूनिट पे पास होगा। सेकेंड यूनिट इज योर ग्रेट रिमूवल, जिसके अंदर हम सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड दी सॉलिड्स विच आर हैविंग अ मोर मास, बिगर साइज के जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, जो सॉलिड्स होंगे उसको हम ग्रेट रिमूवल में रिमूव करते हैं। देन वी आर गोइंग मेक we are then shifting the wastewater to the primary treatment। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जाएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट से बायोलॉजिकल प्रोसेस में होगा जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, वहाँ से वो जाएगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि इसके पहले एक ऑफलाइन फ्लो इक्वलाइजेशन है ना, मीन्स हम एक इक्वलाइजेशन टैंक ग्रेट रिमूवल और प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बीच में फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक रखते हैं, जो फ्लो, जो आपका वेस्ट वाटर का फ्लो है उसको इक्वल करने के लिए। ठीक है ना, मीन्स उसका जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट है, फ्लो रेट को हम कम कांस्टेंट कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। तो फ्लो इक्वलाइजेशन को हम बीच में रखते हैं। दो प्रकार के फ्लो इक्वलाइजेशन होता है, एक तो ऑफलाइन आपने यहाँ देखा, और दूसरा होता है इनलाइन फ्लो इक्वलाइजेशन। इनलाइन फ्लो इक्वलाइजेशन, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, वो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में वेस्ट वाटर आएगा, वहाँ पर आपने देखा कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए भेजते हैं। जो भी सॉलिड्स निकलेगा उसको हम सीधा क्या करते हैं, प्रोसेसिंग में भेज के लैंडफिल साइट पे हम भेज देते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो वेस्ट वाटर को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में देखे होगे आप कि वहाँ पर जो भी सॉलिड्स निकल रहा है उसको हम एज अ वेस्ट बायो सॉलिड्स बना के लैंडफिल में भी भेज रहे हैं, कुछ बायोसॉलिड्स को क्या कर रहे हैं हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक में भी भेज रहे हैं वहां भी प्रोसेस करने के लिए। फ्यू ऑफ द रिसाइकल्ड बायोसॉलिड्स दैट आर द एक्टिवेटेड माइक्रोब्स, जो डेड माइक्रोब्स नहीं है ना, तो एक्टिवेटेड माइक्रोब्स को क्या कर रहे हैं हम फिर से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। एंड योर ट्रीटेड एफ्लुएंट विल बी सेंड टू फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इन फिल्ट्रेशन वी आर सेपरेटिंग, वी आर सेपरेटिंग द सॉलिड्स फ्रॉम वाटर। वाटर से हम सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं, और आपका जो वाटर है वो क्या होता है, आगे पास होता है क्लोरीनेशन करके हम एफ्लुएंट में उसको डिस्पोज करते हैं, फाइनल डिस्पोज। ठीक है ना, मतलब डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट। एंड यहाँ पर जो भी आपका सॉलिड्स निकलेगा उसको हम क्या करते हैं, बायो सॉलिड्स के रूप में उसको लैंडफिल में भेज देते हैं। ओके, क्लियर। सो दिस इज द ट्रीटमेंट प्रोसेस, जनरल फ्लो डायग्राम ऑफ अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट। तो ट्रीटमेंट प्लांट का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो इस तरीके से होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। हमने अपने थंबनेल में ही देखा होगा कि जो टॉपिक है आज का वो है स्क्रीनिंग, एंड द नेक्स्ट इज योर फ्लो इक्वलाइजेशंस, राइट, flow equalizations. So we will going to see about the types of screens, their applications, design criteria for the coarse screen and the fine screen, then how much quantity, what is the characteristic, and how we are going to handle the screenings. Okay, and the disposal of the screenings. So all these topics we are going to see in the next upcoming slides. Now screening device. Okay, screening device means a screen, इसको हम बोल सकते हैं स्क्रीनिंग डिवाइस को screens. Okay, now स्क्रीन इज अ डिवाइस विद अ ओपनिंग, उसके अंदर एक ओपनिंग होता है विद अ यूनिफॉर्म साइज। थ्रू आउट द स्क्रीन आप देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म साइज का, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के रूप में, आपने हाईवेज पे देखा होगा ऑन बोथ द साइड्स यू विल बी फाइंडिंग दैट like this type of a frame, iron frame structure is there, rods are there, frame is there, and then like this
vertical rods sometimes, and sometimes the frame is like this, square, and the bars will be horizontal. Like this way, we you have seen on the highways on both the sides of the camber that they are providing a this screens. Okay, means जो भी रास्ते के ऊपर प्लास्टिक पेपर बॉटल्स जो हम फेंकते हैं वो जो ड्रेनेज साइड ड्रेन्स होते हैं उसके अंदर ना चले जाए, इसके लिए इसकी वजह से हम स्क्रीन्स हाईवे पे भी प्रोवाइड करते हैं एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी प्रोवाइड करते हैं, तो लाइक दैट थिंग्स। ओके, सो स्क्रीन्स इज अ डिवाइस इन विच देर इज एन ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज ऑफ यूनिफॉर्म साइज की ओपनिंग्स होते हैं। what is the purpose of the screen? The purpose is to retain the solids that are found in the influent wastewater. Okay, influent wastewater के अंदर जो भी solids present है उसको retain करना इसका main purpose होता है। Next, the purpose of the screen is to remove the large objects that can damage। हमें रिटेन क्यों करना है या हमें रिमूव क्यों करना है? अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो वो आने वाले जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उनके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स है, वाल्व्स हैं, नोजल्स हैं, पंप्स है, चैनल्स है, वो सभी को ब्लॉक करेगा या तो फिर क्या करेगा, उसको डैमेज कर देगा। सो वी हैव टू रिड्यूस रिमूव ऑल दिस लार्ज ऑब्जेक्ट्स। नाउ द स्क्रीनिंग एलिमेंट्स। अब जो हमारा स्क्रीन होता है, स्क्रीन के अंदर आप क्या क्या देखेंगे, ठीक है ना? देर विल बी अ पैरेलल बार्स, रोड्स, वायर्स, क्रिटिंग्स एंड वायर मैश और परफोरेटेड प्लेट्स। द ओपनिंग में बी ऑफ, अब जो ओपनिंग्स होता है वो तो सर्कुलर भी हो सकता है एंड रेक्टेंगुलर टाइप्स के भी हो सकते हैं। नाउ द स्क्रीन कंपोज ऑफ द पैरेलल बार और द रोड्स, या तो पैरेलल बार्स होंगे या तो रोड्स होंगे, एंड दैट्स वाई दीज स्क्रीन्स आर ऑल्सो समटाइम्स नोन एज अ बार रैक, ओके, और अ कोर्स स्क्रीन। Fine screens are made up of perforated plates and a wide वेज वायर। ओके, जैसे कि हमारी जो विंडोज़ में हम मॉस्किटो नेट लगाते हैं ना, वायर मैश वाली, छोटी छोटी ओपनिंग्स वाली, तो लाइक दैट टाइप ऑफ फाइन स्क्रीन्स आर अवेलेबल इन द ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, सो दिस इज द फाइन स्क्रीन एंड कोर स्क्रीन। दो टाइप के स्क्रीन्स होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला जो होता है वो फर्स्ट वन इज योर कोर्स, सेकेंड इज योर फाइन, एंड थर्ड इज योर माइक्रो स्क्रीन्स। थर्ड इज योर माइक्रो स्क्रीन्स। तो थ्री टाइप्स के स्क्रीन्स होते हैं। नाउ व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग किसको कहा जाता है? द मटेरियल दैट वी आर रिमूविंग फ्रॉम द वेस्ट वाटर, ओके, दैट इज योर स्क्रीनिंग। नेक्स्ट, दिस इज द क्लासिफिकेशन, मोर वेरी मच important classification of screens. Core screen, the first one, second micro screen, and third is your fine screen. Size is important to remember that the size of the core screen is 6 to 150 mm, whereas for the micro screen, the size is less than 0.5 micrometer, and for the fine screen, the size is less than 6 mm. Okay, now core screens are of two types: hand cleaned, that is manually operated, or mechanically operated. Now, mechanically operated are of chain driven type, reciprocating, track, catenary, and continuous belt. Whereas the fine screens are of three types: static wedge wire, drum type, and step by step. Okay, so this is a very important classification of screens. Sometimes one more question is from this classification is there related to the size of the screens and the proper type, that which of the following is not a uh, mechanical cleaned core screen. Okay, so you have to remember the names. This is the first one, the manual bar screen. Here you can see the person you handled this रैक। इस रैक को क्या करते हैं, जो ऑपरेटर होता है वो इसको मैन्युअली पकड़ता है, और जैसे ही यहाँ पर जो भी सॉलिड्स फंस जाते हैं इस रैक के ऊपर, स्क्रीन्स के ऊपर, उसको मैन्युअली इसकी मदद से, रैक की मदद से वो लोग रिमूव करते हैं। सो मैन्युअली इस तरीके से ऑपरेट होता है। सिमिलरली जो मैन्युअली हो रहा था वो आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मोटर्स फिक्स किए हुए हैं, है ना, ड्रिवन करते हैं। तो वो मोटर क्या कर रहा है कि जो भी आपके वेस्ट वाटर में जो ये देख रहे हो आप जितने भी, है ना, इस प्रकार के वेस्ट आते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, तो उसको रैक की मदद से विद दिस रोप कनेक्टेड विद द मोटर उसको लिफ्ट करते हैं, और लिफ्ट करने के बाद उसको इस बेल्ट के ऊपर, कन्वेयर बेल्ट पे शिफ्ट करते हैं और उसको डिस्पोजल के लिए फर्दर भेज देते हैं। ओके, नाउ दिस इज मैकेनिकली, दिस इज चेन ड्रिवन टाइप,
ओके, चेन ड्रिवन में क्या है, फ्रंट क्लीन फ्रंट रिटर्न, मींस जो चेन के ऊपर ये जो आपका चेन दिख रहा है, दिस इज द चेन। ओके, हियर देर इज अ रैकिंग ट्यून, यहाँ पर रैकिंग होता है। रैकिंग किसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हो आप, है ना, मैकेनिकल में आप देख रहे हो ये जो पोर्शन लॉन्ग पोर्शन दिख रहा है जिससे हम सॉलिड्स को रिमूव करते हैं, इसको रैकिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो रैकिंग्स आर प्लेस एट अ फ्यू इंटरवल्स, यहाँ पर कुछ इंटरवल्स पे रैकिंग प्रोवाइड किया जाता है, और इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इस डायरेक्शन में जाएगा और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो जो भी फ्लो के साथ वेस्ट वाटर के अंदर जो भी सॉलिड्स आ रहे हैं या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो इस चेन के ऊपर फिक्स हो जाएंगे, और ये रैकिंग की मदद से हम इसको ऊपर लेके जाके यहाँ पर ये देख रहे हो आप, स्क्रीनिंग थ्रू पे सभी आपके वेस्ट यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर वो हम उसको ऑटोमेटिकली आगे फर्दर प्रोसेस के लिए लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज योर रेसिप्रोकेटिंग रैक स्क्रीन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लूम असेंबली टाइप में होता है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ये देख रहे हो, दिस वन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो जैसे ही लोड बढ़ता है वो ऊपर साइड पे रैकिंग करता है और फिर उसको रिमूव कर देता है यहाँ से आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटेनरी टाइप, अगेन दिस इज अ बार रैक, हियर यू कैन सी लाइक दिस वन, और एक यहाँ से इसको चेन की मदद से ऑपरेट करते हैं, दिस इज द मोटर। ओके, कैटेनरी स्क्रीन हो गया, कंटिन्यूअस बेल्ट स्क्रीन हो गया। डिटेल में आपको कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, फंक्शंस क्या कर रहा है कैसे कर रहा है वो आपको कुछ नहीं पूछेंगे इतना डिटेल में, ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द डिज़ाइन क्राइटेरिया पैरामीटर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर मैन्युअली एंड मैकेनिकली क्लीन बार्स। अब जो स्क्रीन्स हम डिज़ाइन करेंगे तो कौन से बेसिस पे करेंगे, सो दीज आर द पैरामीटर्स, लाइक बार साइज क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितना होना चाहिए, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स कितना होना चाहिए, स्लोप कितना होना चाहिए, देन द फिफ्थ पैरामीटर इज अप्रोच वेलोसिटी, एंड द सिक्स्थ वन इज योर अलाउेबल हेड लॉस। सो ये जो है वो यूएस बेस्ड है, तो यूएस बेस्ड तो हमारे एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसको कैंसिल करो। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द एसआई यूनिट बेस, दिस वन इंडियन के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे मैन्युअली एंड मैकेनिकली का पूरा पैरामीटर वाइज जो भी है डिजाइन क्राइटेरिया वो दिया हुआ है, जैसे कि विड्थ होना चाहिए मैकेनिकली 5 to 15, सेम है दोनों में, डेप्थ दोनों में सेम है, क्लियर स्पेसिंग आप देख सकते हो, ये सभी यूनिट्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, यूनिट्स यहाँ पर है। तो क्लियर स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 25 to 50 एंड 15 to 75, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो स्पेसिंग ज़्यादा भी दिया है, स्मॉल से ज़्यादा मीन्स ज़्यादा मटेरियल को ये कैरी कर सकता है, लेकिन मैनुअली आप ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज द स्लोप, दिस इज इन डिग्री, द स्लोप इज 30 to 45 डिग्री और 0 to 30 डिग्री। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ अ स्क्रीन। स्लोप कैसा होता है कि जैसे कि आपका ये चैम्बर है ना, तो ये जो स्लोप है यहाँ पर आप स्क्रीन ऐसे प्रोवाइड करोगे। ओके, दिस इज द एंगल 30 to 40। ओके, दिस वन। नेक्स्ट इज ये दिस स्लोप इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, next, the approach velocity, the velocity that is the velocity of a waste water, ये जो स्क्रीन है और ये जो वेलोसिटी से आ रहा है ना, वेलोसिटी से आपका वेस्ट वाटर आ रहा है स्क्रीन की ओर, उसको हम अप्रोच वेलोसिटी बोलते हैं। नाउ अप्रोच वेलोसिटी यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड द वैल्यूज इज 0.3 to 0.6 and 0.6 to 1, this is the range. Allowable head loss is in mm, and in manually allowable head loss is 150, whereas in case of mechanical it is 150 to 600 mm. Next, this is the very important formula to calculate the head loss. Head loss calculate करने के लिए बहुत important formula है, कुछ parameters दिए रहेंगे तो आप directly head loss मीटर में convert कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द फॉर्मूला फॉर द हेड लॉस कोर्स स्क्रीन के लिए क्या है, 1/c वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन 2g। नाउ c इज योर डिस्चार्ज कोफिशिएंट, फॉर द क्लीन स्क्रीन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, c की वैल्यू हो जाएगी 0.7 फॉर क्लीन एंड c की वैल्यू हो जाएगी 0.6 फॉर क्लॉक्ड, दिस इज फॉर क्लॉक्ड स्क्रीन, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल वी, जो कैपिटल वी है वो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू द ओपनिंग्स, एंड स्मॉल वी इज द अप्रोच वेलोसिटी इन द अपस्ट्रीम। ओके, जी इज द एक्सीलरेशन ग्रेविटी। दिस इज द फाइन स्क्रीन, एग्जांपल ऑफ फाइन स्क्रीन है ये, ठीक है ना।
ये जो होता है इसका शेप इस तरीके से होता है, यहाँ पर ऐसा, वेट अ मिनट, ये स्ट्रेट एंड हियर दिस विल बी लाइक दिस, राइट। ये आप देख सकते हो, ये जो स्लोप दिख रहा है यहाँ पर, ये दिस स्लोप इज लाइक दिस, करेक्ट। तो जो भी आप जैसे ही इसको आप वेस्ट वाटर स्ट्रीम में रखेंगे, तो आपका जो वाटर है वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा और जो भी सॉलिड्स है वो इजीली क्या करेगा, इस पोर्शन में कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन से निकल जाएगा, यहाँ के पोर्शन से निकल जाएगा, ओके। एंड योर वेस्ट विल बी कलेक्टेड इन द बॉटम साइड पोर्शंस एंड फ्रॉम हियर वी कैन रिमूव द सॉलिड्स। नेक्स्ट, दिस इज द ड्रम टाइप फाइन स्क्रीन। यहाँ पर देख सकते हो कि वेज वायर टाइप किस तरह का होता है एंड परफोरेटेड मेटल्स के किस तरीके से बनाए होते हैं, ठीक है। इसको आप देखो, जो सिलिंडर्स हैं ड्रम टाइप, उसको हम इस डायरेक्शन में वर्टिकली रखते हैं। नाउ जैसे ही क्या होगा कि वेस्ट वाटर आपका यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, है ना, इसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, like this the drum is moving. So whatever the solids that are stuck to this surface, when the drum is moving downside, ये जो प्लेट दिख रहा है इस प्लेट पे स्ट्राइक करेगा और यहाँ पर आपका सभी सॉलिड्स कलेक्ट हो जाएगा, ओके। दिस इज द थर्ड टाइप, स्टेप बाय स्टेप। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे एक्सकलेटर, राइट, दिस इज अ एक्सकलेटर, करेक्ट। अब एस्केलेटर आप देखते ही होगे कि किस तरीके से होता है, लाइक सेम सिचुएशन, यहाँ पे जो टूथ टाइप बन रहा है स्टेप बाय स्टेप, है ना, ये कंटिन्यूअसली मूव होता रहता है। तो जो भी सॉलिड्स है वो आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, जैसे ही फिक्स होगा तो जो स्मॉल स्मॉल सॉलिड्स है उसकी एक अलग से कारपेट बन जाएगी, और वो पूरा का पूरा कारपेट क्या होगा, आगे चल के जो रोलर है वहां से वो कलेक्ट करवा देगा एक चेन ड्रिवन या बेल्ट कन्वेयर के ऊपर, ओके। सो लाइक दिस वे द स्टेप बाय स्टेप फाइन टाइप screen is working. The formula for the head loss through fine screen is 1 by 2g q upon Ca. Again, C is the discharge coefficient and the C value is here only this. You can take C is equal to 0.7 for the clean and 0.6 for clocked one. Okay, these conditions remains the same and the formula is here 1 upon 2g q by Ca whole square. Okay. दिस इज द स्क्रीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्क्रीनिंग किसको बोलते हैं वो हमने देखा कि जो भी मटेरियल्स रिटेन हो रहा है उसको हम स्क्रीनिंग्स बोलते हैं। अब जो स्क्रीन्स वेस्ट वाटर में से हमको जो मिल रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सो हियर यू कैन सी द साइज ऑफ द ओपनिंग बिटवीन द बार्स। ये जो साइज ओपनिंग डिफरेंट डिफरेंट बार्स की होती है उसके ऊपर देखोगे कि जो मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक वेट एंड द वॉल्यूम ऑफ स्क्रीनिंग, सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग कौन से बार साइज पे मिलेगा जिसका ओपनिंग कम होगा। कम ओपनिंग वाले बार साइज स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग्स मिलेंगे। ज़्यादा स्क्रीनिंग मिलना मीन्स क्या है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होगा, उसका स्पेसिफिक वेट भी बढ़ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, मोर वॉल्यूम ऑफ स्क्रीन, more volume of screenings. This is the correlation, means this is inversely proportional, correct. This is inversely proportional. Wait a minute. This is inversely proportional. More the opening, less screening will be, volume of screening will be collected, and accordingly the moisture content, okay. This is the characteristics of the screening on the fine screen, while this is the coarse screen, okay. नाउ हाउ टू हैंडल द स्क्रीन्स। स्क्रीन हैंडलिंग किस तरीके से होता है, ये देख रहे हो, ये टॉप व्यू है इस इंस्ट्रूमेंट का, ओके। तो इसका कुछ काम नहीं है, आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर हम क्या करें, ये जो पोर्शन दिख रहा है फीड होपर, फीड होपर के अंदर हम सभी वेस्ट को, जो भी हमारे स्क्रीनिंग्स निकल रहे हैं सबको हम इसके अंदर फीड कर देंगे। ये जो ड्राइविंग यूनिट है, मींस ड्राइविंग यूनिट इज योर मोटर, मोटर की मदद से हम उसको ड्राइव करेंगे। जैसे ही ड्राइव करेंगे, ये देख रहे हो अंदर की जो मैकेनिज्म है वो स्क्रू टाइप है, सिलिंड्रिकल स्पाइरल स्क्रू, ये देखो, है ना, इस तरीके से। तो जैसे ही रोटेट करोगे वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव करेगा तो क्या करेगा कि
यहाँ से जो ड्रेन होगा वो वेस्ट वाटर आपका यहाँ से ड्रेन हो जाएगा. वेस्ट वाटर विल बी ड्रेन फ्रॉम दिस साइड एंड द ड्राई फॉर्म ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट का ड्राई फॉर्म है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा. ओके, सो लाइक दिस वे वी आर डूइंग द हैंडलिंग प्रोसेसिंग ऑफ द स्क्रीन्स. नाउ द मीन्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द स्क्रीन. अब डिस्पोजल, हम स्क्रीनिंग्स का डिस्पोजल किस तरीके से करेंगे? बाय हॉलिंग, मीन्स हम ट्रक के अंदर उसको डाल के लैंडफिल साइट तक पहुंचाते हैं, या तो फिर म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसके साथ हम मिक्स करके हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं. देन डिस्पोजल बाय बरियल ऑन द प्लांट साइट. प्लांट साइट पे भी अगर हमारा बहुत ही छोटा सा थोड़ा सा वेस्ट निकल रहा है तो हम प्लांट पे ही उसको डंप कर सकते हैं, अगर वो एसटीपी से निकल रहा है, मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से. लेकिन ईटीपी से अगर निकल रहा है तो हम उसको बरी नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट इज कंटेनिंग सम ऑफ द केमिकल्स विच इज डेंजरस फॉर द ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन. दैट्स वाई whatever the wastewater or whatever the sludge we are obtaining from the STP we can use as a manure in the farming, but the sludge that is obtained from the ETP plant we cannot use as a manure, and that's why we have, after treatment, we have to send it to the landfill sites. Next, either we can send the sludge or the screenings to the incinerations alone or with a combination of a sludge and a grit. इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशंस में बहुत हाई टेम्परेचर पे हम सभी जो भी सॉलिड्स हैं, स्क्रीनिंग्स हैं जिसको हम इजीली बर्न कर सकते हैं, उसको हाई कैलोरिफिक वैल्यू वाला जो सॉलिड्स होता है उसको हम बर्न करते हैं और उससे हम हीट ऑब्टेन करते हैं, तो स्क्रीन इंसिनरेशन प्लांट में वो करते हैं. ओके, आइदर वी कैन डिस्चार्ज टू द ग्राइंडर्स और द मैन्सनेटर्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लोटिंग मटेरियल्स है उसको हम ग्राइंड करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट स्मॉल कटिंग करते हैं और उसके बाद हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं. ओके, नाउ फ्लो इक्वलाइजेशन. फ्लो इक्वलाइजेशन का मेन पर्पस क्या था? हमने देखा था कि जो फ्लो है आपका वेस्ट वाटर का, जो भी फ्लो रेट है, उस फ्लो रेट को हाई फ्लो रेट से हम लो फ्लो रेट पे कन्वर्ट करते हैं, मीन्स उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं फ्लो रेट को, करेक्ट. सो फ्लो इक्वलाइजेशन सिंपली is used for damping the flow rate variation and to achieve a constant and a nearly constant flow rate. Now, what are the different methods for flow equalizations and why we are using the flow equalizations? This is used to overcome the operational problem caused by the flow variations. अगर आपका flow rate बहुत ही जोर से आ रहा है तो आपके जो यूनिट्स हैं आपकी, उसके अंदर जो वाल्व और जो डिफरेंट फंक्शन पंप्स है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो फ्लो रेट का वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रीटमेंट यूनिट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा. दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ फ्लो इक्वलाइजेशन बिफोर द एक्चुअल ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स. फ्लो इक्वलाइजेशन के अंदर आपका जो फ्लो रेट का वेरिएशन है उसको कांस्टेंट कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. आपका फ्लो रेट बहुत ही स्लो रहेगा, लो रहेगा, तो हम इजीली उसका ट्रीटमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको हम अचीव कर सकते हैं और आपको 100% के नियर अबाउट रिजल्ट मिल सकता है. लेकिन आपका फ्लो रेट बहुत ही वेरिएशन में रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगा और आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. ओके, नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द साइज एंड द कॉस्ट ऑफ द डाउनस्ट्रीम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग द इक्वलाइजेशन. ओके, there are two type of flow equalization: inline equalization and offline equalization. Here you can see both the diagram. The first diagram is for the inline equalization, जिसके अंदर आप देखोगे कि आपका वेस्ट वाटर आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज टू स्क्रीनिंग, देन इट गोज टू ग्रीट रिमूवल, देन आप फ्लो रेट को इक्वल करोगे, कांस्टेंट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ अ पंप वी आर सेंडिंग इट फॉर द primary treatment, secondary and other treatments. Okay, so here flow equalization is, this is the diagram of inline flow equalization. Okay, and the second diagram is, here you can see the equalization basin is outside the main system. So water will go inside the screen, then grit removal, then you will send it to the offline equalization basin, and from there again with the help of a pump you are sending back into the treatment plant. So your equalization basin is away from the mainstream, whereas in case of inline flow equalization system the equalization is in between the सिस्टम के बीच में ही आ जाता है, और जो भी आपका वेस्ट वाटर है वो अगर फर्दर प्रोसेस के लिए भेजना है तो आपको इक्वलाइजेशन बेसिन के थ्रू ही भेजोगे. यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आपको पता है कि आपका जो इन्फ्लुएंट है उसके अंदर
उसका फ्लो रेट बहुत ही नॉर्मल है, तो आप डायरेक्टली भी आप उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हो। अगर फ्लो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको ऑफलाइन इक्वलाइजेशन में यूटिलाइज कर सकते हो। सो हियर इन ऑफलाइन इक्वलाइजेशन यू गेट अ ऑप्शंस दैट आइदर यू कैन bypass the equalization basin or you can go through the equalization basin. So this is the major difference between the inline and offline equalization tank. Okay, so thanks for watching the Ekdant Environment Educations, and if you are new to this channel को सब्सक्राइब कर लेना, so that नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन फ्रेंड्स।